So hello everybody, welcome to the YouTube channel. So today we'll be talking about that kind of companies जहाँ पे सब लोग पैसा लगा के ऐसे भूल जाना चाहते हैं and see that उनका फ्यूचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए. So जैसे मैंने हमेशा बोला है, आपके पोर्टफोलियो में 10%, पोर्टफोलियो का 10% मतलब अगर आपके पास 1000 रुपये है, 100 रुपये आप वैसे रिस्की फंड्स में आप डाल सकते हो. स्पेयर दैट काइंड ऑफ मनी फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज अभी आप स्मॉल कैप में डाल रहे हो, फ्यूचर में वही कंपनीज विल बिकम लार्ज कैप कंपनीज एंड मेक यू रिची रिच. So we'll be talking about that kind of a company. So without any ado, let's start the video. So the company that we're going to talk about is Deepak Nitrite. So what is Deepak Nitrite? पहले हम इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे. Then we'll be talking about ये actually इतना फेमस है क्यों and what kind of returns it has given in the past. फिर उसके फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे. Then we'll do a little bit of forecast. Then we'll go to the favorite part जो है कि हम लोग देखेंगे बाय इट्स टेक्निकल एनालिसिस कि कौन से टाइम में से बाई करने से यूल गेट अ गुड बाई फॉर लॉन्ग टर्म. सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री और एक्चुअली बिजनेस क्या करता है. सो एज यू कैन सी, दीपक नाइट्रेट इज इन्वॉल्व इन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ये आप देख सकते हो केमिकल्स में, इट मेक्स केमिकल्स एंड इट ऑल्सो मेक्स whitening products, whitening thickening products. So इनका business was mostly Europe centric, but in this year it came to Asia and Asia में अपना business conduct करने की वजह से उनका revenue इस year exponentially growth किया. तो आप देख सकते हो इनका revenue growth was exponential this year क्योंकि उनका जो competition एशिया मार्केट में था, that was China, they went out of the scene and जिसके वजह से the entire revenue growth उनका एशिया से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड उनका मेजर फोकस ऑफ द बिजनेस शिफ्टेड टू एशिया, जिसके वजह से आप देख सकते हो 19 था वहाँ से उनका यूरोप में बहुत ज़्यादा शेयर था, बट नाउ द मेजर बिजनेस वाज कंडक्टेड इन एशिया, जिनकी वजह से आप देख सकते हो द कंपनी हैड अ मैसिव ग्रोथ इन रेवेन्यू इन 2020, जिसके वजह से यू कैन सी द सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन इट्स शेयर प्राइस ऑल्सो. एंड टॉकिंग अबाउट दिस शेयर प्राइस, आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इट गेव अ रिटर्न ऑफ 1.12%. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इज दैट द पास्ट ईयर जो इट वाज अ वेरी बैड ईयर फॉर बिजनेस पर्पज, बट उसमें भी इन दिस टफ टाइम्स इट हैज गिवन अ 131% रिटर्न. मतलब आपके it had given double capital in just a single year, that also in this kind of a year where the entire economy was suffering. And अगर आप last 5 years का बात भी देखो, it has given a massive 1139% return, मतलब more than 10x. that is bonkers. मतलब 5 साल में it is given 10x, then it's a very very good return for in case of any company. एक small cap company last 5 years now it has become a mid cap company in fact, so it has given exponential return. But the main topic of the time is that will it be able to continue this trend in the future. तो इस बारे में हम लोग आगे further वीडियो में बात करते रहेंगे. So now if you look at its PE ratio is 18 and the sector P is 24. तो अगर हम उस सेंस में देखें it is still available at a cheaper rate compared to its peers of the same sector. Then if we move on further to its financial trends, अब जैसे हम लोग previously बात कर चुके हैं 2020 में it has given a massive jump in revenue due to its main business shifting towards Asia. Now to talk about its holding pattern, you can see that promoters are holding around 45%, which is decent enough and even complying with the norms, and the like other parties जो हम retailers है they're holding close to 30%, which is also good enough in case of liquidity purpose के लिए भी सही है. And mutual funds, domestic DIIs and even FIIs are holding their fair share in this company and showing their faith towards the sector. जैसा हम देख सकते हैं 2020 में the chemical sector has given a good jump and a good return also, जिसके वजह से this is also a leader in it, जिनका बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, around 60 to 70% in few of its products, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा होगा इफ द केमिकल सेक्टर इज बूमिंग. इट इज अ वेरी स्मॉल सेक्टर. अगर आप देखोगे द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो नॉट दैट मच. उसमें भी इफ इट्स सच अ लार्ज मार्केट शेयर कंपनी, सो डिसेंटली इट शुड प्रमोट like continue this kind of results in the future also. But the
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टू नो दैट जैसे इस ईयर इसका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया इन रेवेन्यू बिकॉज कंपटीशन हट गया था. But if China decides to come back into the scene, then we might see a little decline in the revenue in the coming years, which you need to be cautious about. So आप उसका like growth है हमेशा उनका revenue report भी पढ़ सकते हो. But don't worry for that. I will be there for you guys to let you know if any such thing comes up. I'll surely make a video on it. Now, if you look onto the forecast, आप देख सकते हो if it's performing good also, it will give you around 20% return. But it might give you higher also. जिस हिसाब से Nifty perform कर रहा है, it's making new highs every day, so it might also give you higher returns than that. Then the revenue growth also should increase. Looking about its past performance देख के it, and one more fun fact to know is that इनका debt थोड़ा increase हुआ है because it's a very aggressive style of company. मतलब उनका nature ही थोड़ा aggressive है, तो उसके वजह से they are taking debts. But to be honest, the sector ही ऐसा है, you need to take risks. So this company being a bit of aggressive nature का, उसके वजह से आप उनके balance sheet में debt you might continue to see that kind of debt in their balance sheets. Now we'll move on to the important part, मतलब आपका favorite part, when to take this company. ये कंपनी को कौन से प्राइस पे लेने से आपको बेटर बाय मिलेगा फॉर द लॉन्ग रन. सो फॉर दैट वी नीड टू लुक एट द चार्ट्स. सो यहाँ हमने ज़ेरोधा खोल लिया है एंड ज़ेरोधा में वी हैव ओपन दीपक नाइट्रेट चार्ट. अगर आपका अकाउंट अभी भी ज़ेरोधा में नहीं है देन यू कैन ओपन इट थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस. इसका चार्ट बहुत ही सुंदर रहता है. इसमें टू डू ऑल द टेक्निकल स्टफ इट्स वेरी ईजी इन दिस सिस्टम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट ऑलरेडी अपना यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है फ्यू डेज बैक. फ्यू डेज मतलब जस्ट 1 वीक बैक यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका बाइंग स्टार्ट हो जाता है. और बाइंग स्टार्ट होता है मतलब आपको भी इसी पॉइंट में बाई करना है बिकॉज यहाँ पे एक मेजर डिमांड जोन आ जाता है. सो डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड जोन होता है मतलब उस पॉइंट में जब भी वो शेयर प्राइस पहुँचता है इट गिव्स अ गुड अमाउंट ऑफ बायर्स आ जाते हैं जहाँ पे फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाता है एंड द शेयर प्राइस मूव्स अप. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 बार सपोर्ट ले चुका है. सो व्हाट वाज दैट रीजन, दिस वाज अराउंड 700 to 710. तो इस प्राइस पे आप इसको फिर से ले सकते हो एंड इट हैज़ गिवन अ गुड सपोर्ट. फिलहाल ये अपना अभी 800 पे सपोर्ट ट्रेड हो रहा है. अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है देन यू विल सी दिस लेवल्स अगेन, तब आप इसको फिर से बाई कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म वेयर यू कैन एक्सपेक्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स इन फ्यूचर. सो टू कंक्लूड दिस वीडियो हम बोल सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट वैसा एक कंपनी है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहोगे. दैट एक्स्ट्रा 10% जहाँ पे आप थोड़ा रिस्की नेचर एग्रेसिव होके स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके यू कैन होप दैट दे बिकम अ लार्ज कैप कंपनी एंड गिव यू बंकर्स ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर. तो दीपक नाइट्रेट जरूर वैसा टाइप का कंपनी है. सो अगर आपने यहाँ तक देख लिया देन डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे.